Hello everyone. Let's start with the topic factorization today. Learning outcomes. After watching this video, you all will be able to factorize quadratic and cubic polynomials. Let's begin with factorization of quadratic polynomial. Quadratic polynomials are those polynomials whose degree is 2. Let's consider example. Factorize x square plus 5x plus 6. We will do the factorization of this quadratic polynomial by this identity, which is x square plus a plus bx plus ab equal to x plus a x plus b. This identity you have done in your 8th standard, right? So the question is x square plus 5x plus 6. So by using this identity, how we can write this? We'll write x square as it is. Now 5x can be written as 2 plus 3x and plus 6 can be written as 2 into 3. If you compare this with the identity which I have written here, just see x square plus 2 plus 3x plus 2 into 3. So it can be written as a की जगह यहाँ पर 2, b की जगह 3. So it can be written as x plus 2, x plus 3. Right? So this can be written as x plus 2, x plus 3 by using this identity. Right? So this is the way we have done the factorization. We can do it by the other method which we usually say splitting the middle term. Splitting the middle term. Okay, so how to do this? Let's write question again, which is x square plus 5x plus 6. This is in standard form. ज़्यादा power, the highest power in the first place पे वो term आएगी जिसकी सबसे ज़्यादा एक power है, फिर उससे कम power, फिर उससे कम. So this is the standard form, descending order of the power of the variable. अब यहाँ पे जो middle term है, the middle term is plus 5x. We have to do the splitting of this. How we can do? We have to think of two numbers जिनको हम add करें we get plus 5 और उन्हीं दोनों नंबर को if we multiply we get plus 6 which is this, right? So such two numbers are 2 and 3. If you add 2 and 3 you get 5 and if you multiply 2 and 3 you get 6, right? So how we can proceed this further? X square as it is. Let's split the middle term. So this can be written as 2x plus 3x. We have splitted the middle term and this last term as it is. Right? See again, this x square and this x square same and this plus 6 and this plus 6 are same and we have splitted the middle term. Now just see, can we take something common from the first two terms? यहाँ इन दोनों टर्म से x कॉमन आता है. अब x स्क्वायर से x कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद x. इधर से x कॉमन ले लिया, वी आर लेफ्ट विद प्लस 2. अब इसके बाद ये जो साइन है, जो प्लस 2 है, वी यूजुअली कंसीडर द सेम साइन, राइट? अब नेक्स्ट टू टर्म्स में से देखिए बेटा, कैन वी टेक समथिंग कॉमन? इट इज 3, राइट? सो यहाँ से जब 3 कॉमन लिया, x आया, इधर से 3 कॉमन लिया, 2. आई होप यू नो हाउ टू टेक द कॉमन. जब हम लोग यहाँ पर ये कॉमन ले लेते हैं, प्लीज मेक श्योर आपका ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इट मस्ट बी सेम. अगर ये सेम नहीं आ रहा, इट मीन्स यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. अब ये जो ब्रैकेट सेम है, वी कैन टेक दिस कॉमन, सो इट इज x plus 2, then we'll left with this x and this plus 3. So we will put this in another bracket. So this is the way we do by splitting the middle term. Either you can apply the identity or you can do
by splitting the middle term. Let's do another example. The example is factorize x square minus x minus 20. I will be explaining you factorization of three questions, and here the coefficient of x square in all the three examples is 1. For the time being, I have considered all those three quadratic polynomial where the coefficient of x square is 1. Later we will do the factorization of quadratic polynomial where the coefficient of x square is not 1. So let's do second example. So sum, the coefficient of the middle term is sum. So that is sum is minus 1. Product means here the constant term. This is minus 20. Now think of two numbers. If you add them, you get minus 1, and if you multiply those two numbers, you get the product as minus 20. Take a guess, any guess. The two numbers on adding you get minus 1 and on multiplying you get minus 20. Any guess? सोचो, अब हो सकता है काफी सारे बच्चे सोच भी लें. I hope many of you have guessed it. It is minus 5 plus 4, right? Minus 5 plus 4 is minus 1, and if you multiply minus 5 with 4, you get minus 20. Now let's write the next step. First term we will write as it is. Last term we will write as it is. We will split the middle term. Middle term is minus 1. Let's split it. Right, so it can be written as minus 5x plus 4x. This is the way we have splitted the middle term. Now we will take common from the first two terms. So what can we take common from first two terms? We can take x common. So it will be x minus 5. Whatever the sign we have here, we usually write the same sign. Most of the cases में हम वही sign लिखते हैं जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है. Now, what can we take common from the next two terms? It is 4. So we get x minus 5. Because if we take 4 common, and on taking 4 common from 20, because 20 is equals to 4 into 5. If we take 4 common, we left with 5. So we get 5. Again we are getting these two brackets same. So this is x minus 5 and x plus 4 as factorize, as factor of x square minus x minus 20. Right? I hope you are clear. Now let's do another example. Next example is x square plus x minus. Now x square plus x minus 6. This is in standard form, and the coefficient of x square is, again it is 1. So sum, what is the coefficient of middle term? It is plus 1. And what is product here? Product here will be the constant term. Constant term यहाँ पर क्या है? minus 6. अब आप सोचो दो नंबर, अगर आप उनको ऐड करो आपको प्लस 1 मिले, आप उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 6 मिले. टेक अ पॉज, थिंक. अगर आपको एकदम से स्ट्राइक कर गया, आप अपने आप इसको आगे ट्राई करके देखो और देखो आपके आंसर और मेरा आंसर मैच करता है या नहीं. इतनी देर में आई थिंक काफी बच्चों ने सोच लिया होगा. नंबर्स आर 3 minus 2. 3 minus 2 is 1. And if we multiply 3 with minus 2, we get minus 6. Now let's write the next step. First term as it is. Last term as it is. Now we will split the middle term. So we can write this as plus 3x and minus 2x because the numbers were 3 and minus 2. Let's take common from the first two terms. You can easily see we can take x common. Now here the sign is minus. So we'll write minus. So what can we take common from the next two terms?
it is 2 because 6 is a factor, 6 is a multiple of 2. So we have taken 2 common. Now if we take minus 2 common, we get x, and if we take minus 2 common from minus 6, we get it as plus 3. See, we are getting both these brackets same. ये brackets हमेशा same आने चाहिए. If you are not getting these two brackets same, it means you have done something wrong. आप अपना सारा के सारा जो भी आपने किया है एक बार दोबारा से check करना. Now x plus 3 is common, so we can take it, and the last these two terms can be written as x minus 2 here. So the factors of x square plus x minus 6 is x plus 3, x minus 2. Now let's consider those those questions where the coefficient of x square is not 1. Let's do these three questions. See, here the coefficient of x square is 6, here the coefficient of x square is 4, and here the coefficient of x square is 3. Let's do these questions one by one. So 6x square plus 17x plus 5. We will do the factorization of these questions again by splitting the middle term. First step, check, are these in standard form? Yes, these are in standard form. Always check for standard form first. सबसे पहले आपने देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है. उसके बाद आप देखोगे कैन वी टेक समथिंग कॉमन, क्या कोई कॉमन फैक्टर निकलता है. अगर कुछ भी कॉमन निकलता है तो आप निकाल दोगे. तो ये दो जो स्टेप्स है ये आपने हमेशा ध्यान में रखना है जब भी आपने फैक्टराइज करना है. सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यस. कैन वी टेक समथिंग कॉमन? नो. सो इट मीन्स वी हैव चेक फॉर दिस स्टेप ऑल्सो. अब बेटे हम लोगों ने जो भी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है सम तो वही नंबर होगा. सम इज प्लस 17. प्रोडक्ट के लिए हम लोग देखेंगे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म. सो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 6 एंड द लास्ट टर्म इज प्लस 5. सो 6 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 30. अब बेटे आप लोगों ने ऐसे दो नंबर सोचने हैं कि अगर आप उनको ऐड करो आपको 17 मिले, उन्हीं दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 30 मिले. आप सोचो, आप कैसे सोचो, आपको शायद मिल जाए, दिमाग में आ जाए. आई होप काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा. इट इज 15 and 2. 15 plus 2 is 17 and 15 into 2 is 30. So these are the two numbers. So I'm writing the question again because I have underlined and encircled few numbers. So let's write first term as it is. We will write last term as it is. Now we will split the middle term. So middle term can be written as plus 15x plus 2x. राइट. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने 15x वाली टर्म को पहले लिखना है, आप 2x वाली टर्म को भी पहले लिख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राइट इट एज 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5. राइट. आइदर राइट दिस और राइट दिस. आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा. सो यू पीपल आर फ्री टू राइट. आप जिसको चाहो आप सबसे पहले लिख सकते हो. अब देखिए फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ सकता है. 6 and 15 का कॉमन फैक्टर इज 3. यहाँ पर x स्क्वायर है, इधर x है, सो वी कैन टेक x कॉमन. सो अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 2x प्लस 5. यहाँ पर प्लस साइन है, सो आई एम राइटिंग प्लस हियर. कैन वी टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम द लास्ट टू टर्म्स? द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 5 is 1, so the common we can take as 1. सो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 2x प्लस 5. मैं कॉमन लेके लिखने का ज्यादा इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि आप 7th स्टैंडर्ड से कॉमन लेते हुए आ रहे हो. अब जस्ट ऑब्जर्व दीज टू ब्रैकेट्स आर सेम. तो ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा. तो जो भी ब्रैकेट के बाहर टर्म्स है 3x and plus 1, you can write it like this. Basically we further take common, right? So this is again we are getting two factors for 6x square plus 17x plus 5. The method is same. The only difference is प्रोडक्ट में आपने x स्क्वायर के कोफिशिएंट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके आपने देखना है. उसके बाद नॉर्मली जैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हमने वैसे ही करना है.
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को ट्राई करते हैं, विच इज 4x² minus 4x minus, so 4x² minus 4x minus 15. Remember the first step before factorization? याद है? स्टैंडर्ड फॉर्म. अगेन आई होप आप लोगों को याद होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. कैन वी टेक समथिंग कॉमन? आप देखो 4 और माइनस 15 क्या कुछ कॉमन फैक्टर है? सो इट इज 1. इट मीन्स हमने ये वाला स्टेप भी चेक कर लिया. अब हम लोग लिखेंगे सम एंड प्रोडक्ट. सम वो नंबर जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है, दिस इज -4. प्रोडक्ट जो फर्स्ट और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, सो दैट इज -15 एंड +4 मल्टीप्लाई किया यू गेट -60. अब बेटा आप नंबर सोचो, ऐसे दो नंबर जिनको आप ऐड करो आपको -4 मिले, उन्हीं दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करो आपको -60 मिले. सोचो, थोड़ा सा सोचो. इसका जो आगे शॉर्टकट वगैरह है आपको हम लोग लाइव क्लास में सिखा देंगे, ठीक है? लेकिन अभी तक आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ऐसे दो नंबर सोचो कि जिनको आप ऐड करो आपको -4 मिले, जिनको आप उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो आपको -60 मिले. आई थिंक इतनी देर में कुछ एक बच्चों ने याद, मतलब उनको पता लग गया होगा. सो दोस टू नंबर्स आर -10 एंड +6. -10 + 6 इज -4 और -10 और 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे यू गेट -60. सो आई एम राइटिंग द क्वेश्चन अगेन, क्योंकि मैंने वहां पे एनसर्कल करके थोड़ा सा उसको अनटाइडी से कर दिया. अब फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म as it is. Now we will split the middle term. So it can be written as -10x plus 6x. Again आपकी मर्जी, बट आप 6x पहले लिख सकते हो, -10x आप बाद में लिख सकते हो. चलिए अब हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स में से देखें क्या कॉमन आता है. 4 और 10 का कॉमन फैक्टर इज 2 एंड x वी कैन टेक कॉमन, तो अंदर बचेगा 2x minus 5. अब यहाँ पे प्लस sign है तो we will write plus here. Let's see what can we take common from the last two terms. We can take 3 as common because 3, 6 और 15 का highest common factor है. So we have taken 3 common. अंदर बचेगा 2x minus 5. Again just observe these two brackets are same. So we will write 2x minus 5 और जो bracket के बाहर terms हैं उनको आप एक bracket में डाल दो तो आपको नेक्स्ट फैक्टर मिल जाएगा. बेसिकली बेटा यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा देखो, अगर आप इन दोनों और इन दोनों टर्म्स में से देखो तो बेसिकली हम लोग 2x minus 5 कॉमन लेके यहाँ पर लिखते हैं, और कॉमन लेने के बाद ये जो 2x और +3 है वो हम यहाँ पर लिखते हैं. बेसिकली वी डू दिस. लेकिन हम लोग कई बार समझाने के लिए बोलते हैं जो कॉमन ब्रैकेट है वो आगे लिख दो और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, ये जैसे ताकि तुम लोगों से कोई गलती ना हो. आई होप यू आर क्लियर विद दिस पार्ट. नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट. इट इज 3x² minus 14x minus 5. 3x² minus 14x minus 5. पहला स्टेप स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. Yes, this is in standard form. क्या इधर से कुछ कॉमन निकलता है? नहीं निकलता. It means we have check this step also. अब हम लोग करेंगे मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग. अगर आपको लगता है ये वाला पार्ट आप अपने आप कर सकते हो तो आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज कर दो, डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. उसके बाद दोबारा से आप वीडियो का कंटिन्यू करना, रिज्यूम करना और देखना क्या आपका आंसर और जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आंसर आपका सेम है या डिफरेंट है. इन केस आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो आप देखना आपने कहाँ गलती की है. अगर आपको लगता है कि आपका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट गया है लेकिन आंसर सेम है, तो आपका कोई भी क्वेरी है तो आप वो लाइव क्लास में सॉर्ट आउट करवा लेना. सो सम इज -14 and here the product is
3 into -5 is -15. सो सोचो वैसे दो नंबर जिनको आप ऐड करो तो आपको -14 मिले, उन्हीं दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो आपको -15 मिले. सो सच टू नंबर्स, आई थिंक काफी बच्चों को पता लग गया होगा दोबारा से. इट इज -15 + 1. -15 into 1 is -15. So first term as it is, last term again it is the same. Now we will split the middle term. So it can be written as -15x plus 1x. Let's take common from first two terms. We can take 3 and x common. Here we'll get x minus 5. ये साइन यहाँ पर as it is आएगा. इधर से कॉमन सिर्फ 1 है तो अंदर आ रहा है x minus 5. See, we are getting this bracket same. ये हमने इसको ऐसे लिख दिया और नेक्स्ट ब्रैकेट में जो भी ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म्स थी वो हमने ऐसे 3x plus 1 लिख दिया. अब ये चीज हमेशा याद रखना बेटा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है दैट इज जिसकी डिग्री 2 है, आपको हमेशा दो ही फैक्टर्स मिलने हैं. ठीक है. सो आई होप यू आर क्लियर हाउ टू फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Now we will learn how to do the factorization of the cubic polynomial. Cubic polynomial क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 3 होती है. ऐसे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल जिनकी डिग्री 3 है. अब हम लोग उन पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन सीखेंगे. Now consider the example. Factorize x cube minus 4x square minus 7x plus 10. Cubic polynomial आ गया. अब again always remember the two steps. Standard form. Yes, the given question is in standard form. Can we take something common? अगर आप देखो सारी टर्म से कुछ कॉमन है. इसका कोफिशिएंट 1 -4 -7 plus 10. Other than 1 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. So it means both these steps we have checked. अब बेटे हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग लिखेंगे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 10. So that is हमने सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बता दिया. नेक्स्ट यहाँ पे बेटा कांस्टेंट टर्म है प्लस 10. 10 के फैक्टर्स वी विल राइट. फैक्टर्स ऑफ 10 are +1 -1, क्योंकि +1 की टेबल में भी 10 आता है, -1 की टेबल में भी 10 आता है. अब बेटे +1 -1 को टुगेदर आई कैन राइट इट लाइक दिस +-1. अब 10 2 की टेबल में भी आता है, सो फैक्टर्स +2 and -2, इसको आई विल बी राइटिंग +-2. दिस इज जस्ट द शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग. ठीक है. अब 10 और किसकी टेबल में आता है, 5 की, सो वी कैन राइट +-5. आगे ये 10 की टेबल में आएगा दैट इज +-10. ठीक है. यहाँ पर वी विल राइट, अगर सपोज यहाँ पे बेटा 10 की जगह कोई बहुत बड़ा नंबर होता तो आप स्टार्टिंग के 2-3 फैक्टर्स लिख के आगे आप डॉट्स डाल देना. आपको सारे फैक्टर्स लिखने के लिए जरूरत नहीं है. अब बेटा यहाँ पर देखो आपके पास +1 -1 +2 -2 +5 -5 +10 -10, आपके पास टोटल 8 वैल्यूज हैं. 8 में से आपको याद होगा आपने एक्सरसाइज 2.2 में ये निकाला था कि क्या कोई गिवन वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे इनमें से कौन सा फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल का 0 है. राइट. सो चलो अब x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कोई डाल के देखो. मैं चलो 1 डाल के देखती हूँ. आई एम एज्यूमिंग लेट x इक्वल टू 1. अब जहां जहां x है वहां पे मैंने लिखा 1. सो जस्ट टू चेक क्या 1 गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है. अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम किसी और नंबर से ट्राई करेंगे. क्यूब ऑफ 1 is 1, -4 square of 1 is 1, -7 + 10. So we have 1 -4 -7
plus 10, so that is 11 minus 11 is 0. बाय चांस बेटा देखो पहला ही हम लोगों ने जो मैंने x की वैल्यू 1 एज्यूम की, आंसर 0 मिल गया मुझे, दैट इज मुझे x इक्वल टू 1 गिवन पॉलिनोमियल का 0 मिल गया। अगर आप पहली कोई भी वैल्यू डालते आपको यहाँ पर आंसर 0 नहीं मिलता, तो आप किसी और फैक्टर से ट्राई करोगे, ठीक है। ये आप तब तक करोगे जब तक कि आपको यहाँ पर 0 नहीं मिलता। और ये जितने भी नंबर्स हैं इनमें से किसी ना किसी नंबर से आपको यहाँ पर आंसर 0 मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो नाउ x इक्वल टू 1 आई कैन राइट x इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px, राइट। इस टाइप इक्वेशन हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किए थे। इसको बेटा फर्दर वी कैन राइट देयरफॉर 1 को विल टेक इट ऑन द अदर साइड, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके टू फैक्टर्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स निकलेंगे। तो अब पहला फैक्टर हमें मिल गया, सो x माइनस 1 इज अ फर्स्ट फैक्टर, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड द अदर फैक्टर। अब यहाँ पर x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसको आप डिवाइड करोगे, जो आपको फैक्टर मिला है x माइनस 1। अब हम गिवन पॉलिनोमियल को, जो गिवन पॉलिनोमियल था x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इसको बेटा अब हम लोग डिवाइड करेंगे जो हमें पॉलिनोमियल जो हमें फैक्टर मिला है उससे। मैं काम करती हूँ जहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है मैं उसी से ही वहीं से स्टार्ट करती हूँ। अगर आपको डिवीजन आती है आप डिवीजन करना शुरू करो, तब तक मैं इसको इरेज करती हूँ। चलो अब हम लोग जो पहला फैक्टर निकला था x माइनस 1, राइट, उससे गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलो आई थिंक डिवीजन आप सभी को आती है, आप लोगों ने 8th में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अब मैं इसको फटाफट डिवाइड कर रही हूँ, आप लोग अपना अपना डिवाइड करो फिर चेक कर लेना आंसर्स। अगेन आई एम सेइंग अगर कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी क्वेरी हो, यू पीपल कैन आस्क ड्यूरिंग द लाइव सेशन, whosoever teacher is teaching you. So we get minus 3x square plus 3x, change the sign. अगर आप में से किसी भी बच्चे को डिवीजन भूल गई हो, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना ताकि मैं आपको बिफोर योर लाइव क्लास थोड़ा सा मैं समझा दूं, अगर इन केस आपको भूल गया है कि इसको डिवाइड कैसे करना था। आई होप मेरे ख्याल में काफ़ी सारे बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा, अदरवाइज यू कैन टेक माई कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम एनी ऑफ योर क्लास टीचर। सो वी गेट 0। अब बेटा यहाँ पर रिमाइंडर 0 है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर सपोज 6 है, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँ, 2 3 6, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि जो 2 है वो 6 का फैक्टर है क्योंकि हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब आपको ये चीज क्लियर हो गई है, x माइनस 1 गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सो अब इसी एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 6 को आई कैन राइट 2 into 3, दैट इज इसको और इसको मल्टीप्लाई करो तो आई एम गेटिंग 6। तो सेम वे बेटे यहाँ पर भी आप लोग लिखोगे px इज इक्वल टू x माइनस 1 और दूसरा ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। अब ये x माइनस 1 तो एज इट इज रहा। इसके बाद बेटे हम लोग ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कैसे करेंगे अभी जैसे मैंने आपको कुछ एक एग्जांपल्स लेके समझाया था, ठीक है। तो फैक्टराइज आप लोग खुद करोगे, कैसे सम एंड प्रोडक्ट लिखना है वो आप खुद सोचो, खुद करो। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ। अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भूल गया है तो आप बेशक अपने वीडियो को रिवाइंड करो और देखो मैंने कैसे समझाया था, ठीक है। सो ये वाला x माइनस 1 फैक्टर एज इट इज रहेगा और नेक्स्ट में हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।
plus 2x minus 5. So we have x minus 1 और नेक्स्ट में x माइनस 5 क्योंकि ये ब्रैकेट सेम आया और जो ब्रैकेट के बाहर था वो ये. And now just see the given polynomial has three factors, first factor, second factor and third factor. So it means we have factorized the given cubic polynomial, right? फिर से आप इसके मैम जो स्टेप्स आपको मैं रिवाइज करा देती हूँ. पहला स्टेप होगा बेटा, जो भी आपको पॉलिनोमियल जिस भी वेरिएबल में दिया हुआ है आपने उसकी नेमिंग करनी है. पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x और y और z, जो मर्जी वेरिएबल यूज्ड हो. उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म कॉमन आप लोगे ही लोगे. उसके बाद जो भी लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के आप फैक्टर्स देखोगे, कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स. फिर बारी बारी आप डाल के फैक्टर से देखोगे कि किस केस में आपको आंसर 0 मिल रहा है. दैट इज कौन सा फैक्टर? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है. जिससे हमें वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मिलेगा उससे हमें उस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर मिलेगा. आगे आपने डिवाइड करना है. डिवाइड करने के बाद जो ये क्वोशिएंट आया इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है टू गेट द रिमेनिंग 2 फैक्टर्स. चलो एक और हम लोग एग्जाम्पल करते हैं बेटे और आई होप उसके बाद आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे सो दैट यू कैन डू द क्वेश्चंस ऑफ NCERT. Now the next, this is the example 15 of your book only. Let's name the polynomial. Polynomial in variable x is x cubed minus 23x square plus 142x minus 120. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा. अब यहाँ पे बेटा कांस्टेंट टर्म है minus 120. सो नेक्स्ट स्टेप विल बी फैक्टर्स ऑफ minus 120 आर. अब 120 बेटा प्लस और माइनस 1 दोनों की टेबल में आता है, प्लस माइनस 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है. दे आर सो मेनी फैक्टर्स ऑफ minus 120. आपको सारे नहीं लिखने की जरूरत, आगे आप ऐसे करके डॉट्स डाल सकते हो. ठीक है, ये चीज अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी कराए थे. अब देखो बेटा यहाँ पर इतने सारे फैक्टर्स हैं, किसी से भी ट्राई करके देखते हैं. चलो अब अगेन मैं x की वैल्यू -1 लेके देखूं. चलिए x की वैल्यू -1 डाल के देखते हैं. मुझे नहीं पता -1 से ये आंसर हमें उसका 0 मिलना है या नहीं मिलना. चलिए जहां जहां x वहां वहां हमने डाला -1. सो दिस x की जगह -1 देन -120. Cube of -1 is -1, -23, -1 का square is 1, it will be -142, -120, so we have -1, -23, -142, -120. हमें यहाँ पर बिल्कुल भी 0 नहीं मिल रहा. इनको अगर आप ऐड करो आपको मिलेगा, I think I have done it right. आप देखो 2 3 6 1 and 2 minus, this is not equal to 0. ठीक है, so it means x equal to -1 तो इसका 0 नहीं है. चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं किसी और नंबर से. चलो मैं x की वैल्यू 1 से ट्राई करूं. जहां जहां x है वहां पर हम 1 लिखते हैं. सो 1 क्यूब -23 1 स्क्वायर plus 142 1 and this is -120. सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि स्पेस कम था बेटे. क्यूब ऑफ 1 is 1, -23 स्क्वायर ऑफ 1 is 1 plus 142 minus 120. So we get 1 -23 plus 142 minus 120. So we get 143 minus 143. हमें आंसर मिल गया 0. So this implies x equal to 1 is 0 of px. अगर वो उसका 0 है तो it means कि x minus 1 is a factor of px. हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल का पहला फैक्टर मिल गया. अब हमने क्या करना है, ये जो हमें फैक्टर मिला है उससे
हम गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। चलो अब हम डिवीजन करते हैं। दिस इज द पॉलिनोमियल, लेट्स डिवाइड बाय x माइनस 1। डिवीजन अगर आपको आती है पॉज कर दो वीडियो, चाहे फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। अब फटाफट अपने आप करो और देखो क्या आंसर आता है आपका। आप मेरे से फास्ट कर सकते हो, करो, क्योंकि आई थिंक आप मेरे से फास्ट ही करोगे। कर लो आप लोग, बेशक वीडियो पॉज करो, साथ के साथ करना है, साथ के साथ करो, जैसे आपको इजी लगता है बेटा। अगर मेरे से कोई गलती होती है तो फिर मेरे को इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब देख रहे हो, आप मुझे मेरी गलती भी नहीं बता पाओगे कि मैम आपने ये गलत कर दिया। जैसे कई बार क्लास में टीचर कुछ गलत लिख देते हैं ना, तो आप लोग शोर मचाते हो, मैम वो आपने गलत लिख दिया, ठीक है। तो इट विल बी 120x माइनस 120, सो प्लस 120। और यहाँ पे बेटा जब भी आप ये डिवाइड करोगे ना, आपको रिमाइंडर 0 मिलना ही मिलना है। अगर आपको रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आपकी डिवीजन गलत है, या जो आपने पहला फैक्टर निकाला वही गलत निकाल लिया, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर लिया, अब हम क्या करेंगे, जो कोशेंट है पॉलिनोमियल को सबसे पहले तो पहला फैक्टर और कोशेंट ऐसे लिखा। अब जो भी कोशेंट आया वो तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करोगे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को समझाया है कि कैसे करना है, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ऐसे टू नंबर्स जिनको आप ऐड करो आपको प्लस 120 मिले, सम है -22, प्रोडक्ट इज 120। एनी गेस, ऐसे कौन से टू नंबर्स हैं, सोचो। वैसे ये बुक का आपका एग्जाम्पल है, इट इज -10 एंड -12। जब आपकी लाइव क्लास होगी ना, देखना टीचर्स आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट सा बता देंगे कि ऐसे करो, आपको सोचने में कम टाइम लगेगा। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन आया, -12 x माइनस 10, सो वी हैव x माइनस 1। अब यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन मैं दोबारा नहीं समझा रही, बिकॉज अभी आप लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखा दिया है। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ गए, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12। दिस इज द वे वी फैक्टराइज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स टेक सम होम असाइनमेंट। आपने बेटा अब वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 अपने आप ट्राई करना। अगर आप लोगों से नहीं होता तो लाइव क्लास के अंदर आप अपने जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, या फिर जब टीचर्स क्लास के अंदर करेंगे तो आप अपना चेक कर लेना कि कहाँ आपसे गलती हुई है, और अगर कोई क्वेरी है तो आप टीचर से पूछ भी सकते हो। सो बिफोर अटेंडिंग योर लाइव क्लास प्लीज डू योर होम असाइनमेंट। फैक्टराइजेशन के बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।